Hello everyone, this is Preet Kanwal and today we'll be discussing about the subject details of PLC, that is Programmable Logic Controller. And in that, as like in the previous lecture, we were discussing about the DCS systems, that is the distributed control system. Now also we'll continue this as I have promised you in the last lecture that we will discuss about the difference between the PLC and the DCS, that where in what kind of applications, particular applications the PLCs are used and where the DCS is used. So today we will discuss about that things only, as like in the previous lecture we have discussed about the architecture of DCS, that how it works, that it requires the local unit, it requires the remote unit, the input output, the redundancy and all these things, and according to them we decide that whether the PLC will be used in some particular process or application, or the DCS system will be used, right? So in this particular lecture we will discuss about this thing in a more clear and a more elaborated manner, right? So when we are having a point of discussion about the PLC versus DCS, that where why to choose PLC or DCS for a particular thing, then a few questions are being asked generally, and these are like, what are you manufacturing and how? The questions that come into our minds, that where to use PLC and where to use DCS. And it depends upon that what are you manufacturing and how it is being manufactured. Then what is the value of the product being manufactured and the cost of the downtime, as we have already discussed what is the downtime in the previous lecture, right? Then what do you view as a heart of the system? What does the operator need to be successful? What system performance is required, what degree of customization is required, and what are your engineering expectations? So according to these, a few of these questions, we can decide that what system should be used in our particular plant or in our particular industry in which we are working, right? So we will discuss all the questions one by one. First thing is, what are you manufacturing and how? कि आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं और कैसे बनाना चाहते हैं। तो मेन थिंग इज द वे अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, एक प्रोडक्ट जिस तरह से मैन्युफैक्चर, जिस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है, द परफॉर्मेंस नीडेड, उसकी परफॉर्मेंस क्या चाहिए, अलॉन्ग विद एनी फिजिकल लिमिटेशंस ऑफ द प्रोसेस, एंड ऑल इन्फ्लुएंस द सिस्टम सिलेक्शन। ये सारी चीजें मैटर करती हैं जब हमने सिस्टम को सिलेक्ट करना होता है कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, और उसकी कोई फिजिकल लिमिटेशंस तो नहीं है कि उसको नॉइसी एनवायरनमेंट में वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसको इस तरह से बनाना है कि वो इतने हाई टेम्परेचर पे या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे वर्क कर सके, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट कंडीशंस और द फिजिकल लिमिटेशंस ऑफ द प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं आपके सिस्टम को सिलेक्शन के टाइम पे, राइट? तो अगर हम पीएलसी सिलेक्ट करते हैं तो किस तरह से, कब सिलेक्ट करते हैं? जब मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली हम कर रहे हो किसी स्पेसिफिक आइटम की, किसी स्पेसिफिक थिंग्स की, तो उस टाइम पे हम पीएलसी सिलेक्ट करते हैं। और डीसीएस जो है, इट इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉ मटेरियल्स, कि अगर रॉ मटेरियल्स को हमने कंबाइन करना हो या उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, तो उस टाइम पे हम डीसीएस सिस्टम को यूज करते हैं। अगर प्रोडक्ट विजिबल है एज इट मूव्स थ्रू द प्रोसेस, जैसे जैसे वो प्रोसेस में से गुजर रहा है, इट इज विजिबल, वो दिख रहा है हमें, हम उसको देख पा रहे हैं, हम उसको फील कर पा रहे हैं, तो वो पीएलसी के लिए बना हुआ है। ऑफन इम्पॉसिबल टू विजुअली सी द प्रोडक्ट एज इट मूव्स थ्रू द प्रोसेस। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जो कि विजिबल नहीं है, सिर्फ हम उसको जस्ट फील कर सकते हैं, कंप्लीटली सॉफ्टवेयर पार्ट है, तो डीसीएस सिस्टम के साथ उसको बनाया जाएगा। अगर मोटर्स यूज कर रहे हैं, हाई स्पीड लॉजिक कंट्रोल है, सिंपल बैच कंट्रोल है, तो पीएलसी। और अगर एनालॉग रेगुलेटरी लूप कंट्रोल है और कॉम्प्लेक्स बैच कंट्रोल है, तो फिर डीसीएस सिस्टम विल बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एंड द कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम? ठीक है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है जब वो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और अगर डाउन टाइम मीन्स कि अगर वो चलते चलते स्टॉप हो जाता है और उसे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो वो है डाउन टाइम बिटवीन द स्टॉपिंग ऑफ द प्रोसेस एंड रीस्टार्टिंग इट। तो उस डाउन टाइम की कॉस्ट कितनी जा रही है, तो उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने पीएलसी लगाना है या डीसीएस लगाना है। तो जो वैल्यू है,
अगर सिंगल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है इंडिविजुअल कंपोनेंट की जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा लो है तो पीएलसी यूज कर सकते हैं। अगर लेकिन उसकी वैल्यूज बैच की वैल्यू बहुत हाई है, चाहे वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में हो चाहे मार्केट वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे हो, तो उस केस में हम डीसीएस सिस्टम यूज करेंगे। डाउन टाइम मेनली रिजल्ट्स इन लॉस्ट प्रोडक्शन। तो डाउन टाइम अगर ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन जो है वो लूज हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। तो उस टाइम पे हम पीएलसीज जो है अगर हम यूज कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर ऑलरेडी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है तो प्रोडक्शन जो लॉस है हमारा वो कम होगा, राइट। देन अगर हम डीसीएस सिस्टम में बात करते हैं, तो डाउन टाइम जो डीसीएस सिस्टम में है वो सिर्फ लॉस नहीं करता है प्रोडक्शन के अंदर, बट कैन रिजल्ट इन डेंजरस कंडीशंस ऑल्सो। तो इसमें हम डाउन टाइम को ज्यादा हैंडल नहीं कर सकते हैं, ज्यादा डाउन टाइम नहीं होना चाहिए इस केस के अंदर। लेकिन जो पीएलसी है उसमें इट डज नॉट टिपिकली डैमेज द प्रोसेस इक्विपमेंट को डैमेज नहीं करता है, एंड रिटर्न टू स्टेडी स्टेट प्रोडक्शन ओवर एन आउटेजेस शॉर्ट एंड रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो वो रेडी हो जाता है स्टेडी स्टेट प्रोडक्शन के अंदर वापस से आने के लिए, ज्यादा डैमेज नहीं हो पाता है पीएलसी के अंदर। लेकिन अगर हम डीसीएस सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर डाउन टाइम जो है वो प्रोसेस इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है, प्रोडक्ट को हार्डन कर सकता है, रिटर्न कर सकता है स्टेडी स्टेट प्रोडक्शन में आफ्टर एन अनप्लान्ड आउटेज, एंड इट कैन बी लॉन्ग, एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट हो सकता है ये चीज। तो डाउन टाइम को बिल्कुल भी डीसीएस सिस्टम हैंडल नहीं कर सकता है। तो अगर जिस सिस्टम में डाउन टाइम की पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो उसमें हम डीसीएस नहीं यूज करेंगे, उसमें हम पीएलसी यूज कर सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल, राइट। देन व्हाट डू यू व्यू एज द हार्ट ऑफ द सिस्टम? अब हार्ट ऑफ द सिस्टम क्या है? टिपिकली हार्ट ऑफ द सिस्टम जो होता है कंट्रोलर होता है, तो पीएलसी यूज करेंगे। अगर हार्ट ऑफ द सिस्टम ह्यूमन मशीन इंटरफेस है तो हम डीसीएस सिस्टम यूज करें। तो अगर हम फैक्ट्री ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं तो कंट्रोल सिस्टम जो है वो पीएलसी है, कंट्रोलर है, जिसमें लॉजिक्स हैं टू मूव द प्रोडक्ट थ्रू द असेंबली लाइन। और एचएमआई जो है वो ऑफन यूज की जा सकती है ऑन मशीन और पीसी बेस्ड जो स्टेशन हैं उनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर हम प्रोसेस ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो एनवायरमेंट है वो वॉलेटाइल है, वो डेंजरस हो सकता है, वेयर द ऑपरेटर्स कांट सी द एक्चुअल प्रोडक्ट, और सिर्फ एचएमआई कंसिडर कर रहे हैं हम लोग मोस्ट ऑफ द हार्ट ऑफ द सिस्टम में, तो उस सिनेरियो के अंदर एक सेंट्रल रूम कंसोल है जो कि कंप्लीट विंडो प्रोवाइड कर रहा है इनटू द प्रोसेस, और ऑपरेटर को एनेबल कर रहा है कि वो मॉनिटर कर सके, कंट्रोल कर सके प्रोसेसेस को, कि पाइप्स के अंदर, वेसल्स के अंदर क्या चीज हो रही है, उसके उनके प्लांट के अंदर क्या क्या चीजें लोकेटेड है। तो उन सब चीजों का चेक रखना जो है वो सब कुछ ह्यूमन मशीन इंटरफेस पे डिपेंड करता है। तो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं, जो जहाँ पे हार्ट ऑफ द सिस्टम एचएमआई है, वहाँ पे हम डीसीएस सिस्टम्स यूज करते हैं। अगर कंट्रोलर है हार्ट ऑफ द सिस्टम तो पीएलसी यूज करेंगे। देन व्हाट डज द ऑपरेटर नीड टू बी सक्सेसफुल? अब ऑपरेटर को क्या चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए? अगर पीएलसी एनवायरनमेंट है तो ऑपरेटर का प्राइमरी रोल है टू हैंडल द एक्सपेक्टेशंस, राइट, या एक्सेप्शंस, राइट, टू हैंडल द एक्सेप्शंस। कि अगर कोई एक्सेप्शनल केस आता है, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है, तो ऑपरेटर का प्राइमरी रोल है उसे हैंडल करना पीएलसी एनवायरनमेंट के अंदर। स्टेटस की इंफॉर्मेशन देना, एक्सेप्शन अलार्मिंग हेल्प keeps the operator aware of what is happening in the process। तो अगर वो एक्सेप्शंस के बारे में बता देगा, उनके बारे में अलार्म कर देगा, सिग्नल प्रोवाइड कर देगा, तो ऑपरेटर को पता चल जाएगा कि प्रोसेस के अंदर क्या चीज हो रही है। अगर हम डीसीएस प्लांट की बात करें तो इट रिक्वायर्स एन ऑपरेटर टू मेक डिसीजंस एंड कंटिन्यूसली इंटरेक्ट विद द प्रोसेस टू कीप इट रनिंग। तो उसके उसके साथ कंटिन्यूसली उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है कि ताकि वो सिस्टम जो है वो रन करता रहे, वो चलता रहे। अगर वो एचएमआई खत्म हो जाएगा तो आपका जो सिस्टम है वो भी काम करना बंद कर देगा, ऑपरेटर जो है उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो वो ऑपरेटर जो है उसकी जो नॉलेज है वो एक्सीलेंट नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास ऑपरेशनल एक्सीलेंस होनी चाहिए, सो दैट कि वो ऑप्टिमली मींस एफिशिएंटली आपके सिस्टम को रन कर सके, राइट। तो पीएलसी के अंदर जो ऑपरेटर का मेन काम है एक्सेप्शंस को हैंडल करना। अगर कोई चेंजेस आते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको हैंडल करना है ऑपरेटर का काम। लेकिन डीसीएस सिस्टम में ऑपरेटर की इंटरैक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है टू कीप द प्रोसेस इन इट्स टारगेट परफॉर्मेंस रेंज। अगर ह्यूमन सही तरीके से ऑपरेट नहीं करेगा तो आपका जो आउटपुट है वो एफिशिएंटली नहीं आ पाएगा, तो आपकी जो टारगेट है वो मीट नहीं हो पाएगा। देन पीएलसी के अंदर जो स्टेटस इंफॉर्मेशन है, ऑन ऑफ रन स्टॉप, इट इज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फॉर द
ऑपरेटर कि ऑन हुआ या ऑफ हुआ, तो स्टेटस इन्फॉर्मेशन ऑपरेटर के पास होनी चाहिए। लेकिन अगर हम डीसीएस सिस्टम की बात करें तो फेस प्लेट्स और एनालॉग ट्रेंड्स दे आर क्रिटिकल टू सी व्हाट इज हैपनिंग टू द प्रोसेस। तो ये कंटिन्यूसली उनको देखना पड़ेगा कि प्रोसेस में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, टर्न बाय टर्न उसमें विद इन सेकेंड्स जो है वो चेंजेस आ सकते हैं। तो पीएलसी में एक्सेप्शन बेस्ड अलार्मिंग इज द की इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के लिए वो एक की इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको आप इन्फॉर्म कर दो उसके बारे में कि ये कुछ इस प्रोसेस में चेंज आ रहा है, तो इसको आप चेक कर लो। दिस इज द मेन इन्फॉर्मेशन। लेकिन डीसीएस सिस्टम में अलार्म मैनेजमेंट इज द की टू सेफ ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस, ताकि ऑपरेशन जो है वो सेफ रहे, सही तरीके से चल रहा है, एंड वो आर रिस्पॉन्डिंग इफेक्टिवली ड्यूरिंग द प्लांट अपसेट कंडीशन। और अगर वो प्लांट अपसेट होता है तो वहाँ पे उसको जो रिस्पॉन्ड करने वाला पर्सन है वो इफेक्टिवली उस चीज़ के बारे में उसकी मैनेजमेंट करे, उसके बारे में बार बार जो अलार्म है वो देता रहे, बार बार उसके बारे में सिग्नल प्रोवाइड करता रहे, और उसके रिस्पॉन्ड में इफेक्टिव रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो पीएलसीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग माइट बी एबल टू रन लाइट्स आउट, लाइट्स आउट हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर फेलियर होता है एचएमआई का तो इट कुड फोर्स द शट डाउन ऑफ द प्रोसेस। तो पूरा प्रोसेस जो है, अगर ह्यूमन मशीन इंटरफेस सही तरीके से वर्क नहीं करता है तो पूरा का पूरा प्रोसेस शट डाउन हो सकता है, खत्म हो सकता है, right? So this is the difference between the DCS and PLC in this term. Now what system performance is required, किस तरह की system performance चाहिए होती है इसके अंदर। तो द स्पीड ऑफ द लॉजिक एग्जीक्यूशन जो है, जो उसकी स्पीड है, इट इज द की डिफरेंशिएटर। वो मेन डिफरेंस क्रिएट करती है पीएलसी और डीसीएस सिस्टम्स के बीच में, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था जो पीएलसी है उसका जो स्कैन टाइम होता है वो 10 मिली सेकेंड्स का होता है, लेकिन जो डीसीएस सिस्टम है उसका जो स्कैन टाइम है वो 100 से 500 मिली सेकेंड्स के बीच में हो सकता है। तो वो स्लो स्कैन टाइम वाले जो सिस्टम्स होते हैं उनमें हम डीसीएस को यूज करते हैं, और जहाँ पे फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए वहाँ पे हम पीएलसीज को यूज करते हैं। द पीएलसीज हैज बीन डिजाइंड टू मीट द डिमांड्स ऑफ द हाई स्पीड एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर स्कैन रेट्स ऑफ 10 मिली सेकेंड, और ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और डीसीएस में 100 टू 500 चाहिए। तो इस तरह का जो फास्ट लॉजिक वाले सिस्टम्स होते हैं जिसमें redundancy may not be cost justified, right? The systems can be taken offline भी उनको हम लोग कर सकते हैं, अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना पड़े तो उनको बंद करके उसको हम लोग कर सकते हैं, राइट? जरूरी नहीं है कि चलते चलते में हमने चेंजेस करने हैं, तो पीएलसी में हम उसको बंद करके फिर उसके बाद उसमें चेंजेस करके उसके बाद उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो डायग्नोस्टिक्स हैं टू टेल यू व्हेन समथिंग इज ब्रोकन, तो अगर हम जब डायग्नोस करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि कोई चीज खराब हुई है या कुछ भी है, राइट? देन लेकिन अगर हम डीसीएस सिस्टम्स की बात करें तो कंट्रोल रूप जो होती है उनमें जो स्कैन एग्जीक्यूशन स्पीड है वो 100 से 500 मिली सेकेंड्स की होती है, और सिस्टम रिडंडेंसी जरूर चाहिए होती है बिकॉज इसमें बैकअप प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब जब वो चल रहा है सिस्टम उस टाइम पे भी चेंजेस जो हैं वो मोस्टली उस टाइम पे ही चेंजेस जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं और उसी टाइम पे करने पड़ते हैं। एडवांस प्रोसेस कंट्रोल, सिंपल से एडवांस प्रोसेस कंट्रोल जो है उसमें आपका सिस्टम जो है वो वर्क कर सकता है, और एसेट मैनेजमेंट अलर्ट्स यू टू व्हाट माइट ब्रेक बिफोर इट डस, राइट? तो वो साथ साथ में ही उसके बारे में अलर्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चलनी चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो। द लास्ट थिंग इज व्हाट डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन इज रिक्वायर्ड, किस तरह की कस्टमाइजेशन चाहिए, किस तरह से हमने अपने सिस्टम्स को डिजाइन करना है। तो पीएलसी के अंदर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें चाहिए, देन कस्टमाइज रूटीन्स जो हैं वो जनरली चाहिए होते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं कंसिडर्स नाइस फीचर्स, देन प्रोविजंस मस्ट बी अवेलेबल टू इंटीग्रेट फंक्शंस एंड प्रोडक्ट्स इनटू एन इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट और फंक्शन को इकट्ठा कर दिया जाए। लेकिन डीसीएस सिस्टम में क्या आता है, जो कस्टम लॉजिक है क्रिएटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग फंक्शन ब्लॉक्स जो ऑलरेडी हैं वहां से हम लोग कस्टम लॉजिक्स को जनरेट कर लेते हैं। बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो वेरी नहीं करते हैं अमंग द एप्लीकेशंस। देन स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लाइब्रेरीज जो हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए, फंक्शन ब्लॉक्स, फेस प्लेट्स, जो चीज़ें होनी चाहिए, और एंटायर सिस्टम इज एक्सपेक्टेड
to function as a complete solution. पूरा का पूरा सिस्टम एज अ कंप्लीट सोल्यूशन वर्क करना चाहिए. तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप फंक्शंस और प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करके उसका आर्किटेक्चर बना दो तो वो पीएलसी बन जाएगा, तो वो डीसीएस नहीं बन सकता है. तो उसको कंप्लीट इंटायर सिस्टम जो है वो एक फंक्शन की तरह काम करना चाहिए, कंप्लीट सोल्यूशन की तरह काम करना चाहिए, राइट. एंड व्हाट आर योर इंजीनियरिंग एक्सपेक्टेशंस कि जो प्रोग्राम कॉन्फ़िगर है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स तो इंटीग्रेट उनको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट सिस्टम जो है वो पहले से ही बना होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन पहले से बनी होनी चाहिए. देन पीएलसी में डिजायर कस्टमाइजेबल प्लेटफॉर्म्स टू बिल्ड अपॉन, राइट. लेकिन जो डीसीएस है लुकिंग फॉर सिग्निफिकेंट आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी. आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स कुछ डिफरेंट, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव फंक्शनैलिटी जो है वो डीसीएस सिस्टम के अंदर होनी चाहिए. जो पीएलसी है उसमें सिस्टम डिजाइन फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप अगर आप चेंजेस करने चाहो तो आप कर सको. यहाँ पे जो डीसीएस सिस्टम है उसमें सिस्टम जो है उसको डिजाइन किया जाता है टू मेक इट इजी टू इंजीनियर द प्रोसेस एप्लीकेशंस. जो प्रोसेस एप्लीकेशंस ऑलरेडी हैं उनको इजीली हैंडल करने के लिए उनको इस तरह से पहले से ही डिजाइन किया जाता है. इन पीएलसी में जो सोल्यूशन है इट इज जेनरिक इन नेचर टू बी अप्लाइड टू वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, लेकिन यहाँ पे प्री डिफाइंड और प्री टेस्टेड फंक्शंस यूज किए जाते हैं, इनकी वजह से आपका टाइम बचता है. PLCs के अंदर इट यूजेस द लेडर लॉजिक टू कॉन्फ़िगर एप्लीकेशंस. लेडर लॉजिक यूज करते हैं एप्लीकेशंस बनाने के लिए, और यहाँ पे FBD सिस्टम, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम जो सिस्टम है वो हम लोग यूज करते हैं उसकी एप्लीकेशंस को बनाने के लिए. तो ओवरव्यू क्या है कि अगर मार्केट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो PLCs है वो 1960s में डेवलप की गई थी और DCS सिस्टम जो है वो 1975 में आया था. अगर हम रिप्लेसमेंट्स की बात करें तो पीएलसीज ने रिप्लेस किया इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज को और डीसीएस ने सिंगल लूप कंट्रोलर्स को रिप्लेस किया है. तो पीएलसी से हम थिंग्स बने मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और डीसीएस से स्टफ, कंप्लीट प्रोसेस, राइट. देन क्लासिक एप्लीकेशंस क्या है, पीएलसी जो ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस होती हैं उनमें यूज करते हैं, और जो डीसीएस सिस्टम है वो रिफाइनिंग एप्लीकेशंस में. डिस्क्रीट टाइप ऑफ कंट्रोल होता है पीएलसीज में और रेगुलेटरी टाइप ऑफ कंट्रोल होता है डीसीएस सिस्टम्स के अंदर. तो वार्म बैकअप है पीएलसी में कि अगर हो जाए थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाए तो इट्स ओके, लेकिन जो डीसीएस है उसमें हॉट बैकअप चाहिए क्योंकि ह्यूमन मशीन इंटरफेस कंटिन्यूसली काम कर रही है. देन इंजीनियरिंग माइंडसेट क्या होता है, प्रोग्रामिंग. पीएलसी में बेसिकली पीएलसी कैसे वर्क करवानी है, प्रोग्रामिंग के साथ, लेकिन डीसीएस कैसे वर्क करवानी है, कॉन्फ़िगरेशन के साथ, क्योंकि उसमें एफबीडीज यूज हो रहे हैं, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम्स. ओके. देन ऑपरेटर इंटरैक्शन एक्सेप्शन बेसिस है ऑपरेटर इंटरैक्शन पीएलसी के अंदर, लेकिन डीसीएस में मैन इन द लूप, जो मैन है वो वर्क कर रहा है आपके लूप के अंदर, राइट. इसमें सिंपल ग्राफिक्स होते हैं पीएलसी में, डीसीएस में सोफिस्टिकेटेड ग्राफिक्स होते हैं. जो साइज है कॉम्पैक्ट होता है पीएलसी का, डीसीएस लार्ज साइज होता है. अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो कम होती है पीएलसी की, डीसीएस की ज्यादा होती है. और जो सिस्टम है, पीएलसी इज एन ओपन सोर्स सिस्टम, लेकिन जो डीसीएस है वो एक क्लोज्ड सिस्टम है, right. So this was all about the DCS system and its difference with the PLCs, that how it is different from the PLC system and in what kind of particular applications the DCS is being used and what kind of particular applications the PLCs will be used, how to decide between the two, what kind of applications, what kind of controller, what kind of heart it is required to decide between that whether to use PLC in this particular system to operate or the DCS system in this particular industry or this process control or something like that. So this was all about the DCS and the PLC's difference with each other, and I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.